Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 9th, Subject English. Today we will start poem number 8 on killing a tree. The poet Giv Patel. He is an Indian poet, playwright, painter, and also practicing as a physician doctor in Mumbai. And Patel belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the green movement, which is involved in an effort to protect the environment. Basically, he is an environmentalist. गिव पटेल है, वो बेसिकली इंडियन पोइट है, ड्रामा लिखते हैं, पेंटर है, और बाय ऑक्यूपेशन ही इज़ अ डॉक्टर. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट के he is a part of the green movement who protect the environment. And his poem always speak about the nature and expose man's cruelty towards the nature. And he has a very peculiar works like how do you withstand body, mirrored morning, and title poem also. And he has also write the 3 plays, basically Princess, Savaska, and Mr. Behram. Okay, let's come to the point, come to the plot of the poem on killing a tree. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out that the poet says on killing a tree. Here poet first asks us the questions that really you can you kill the tree? क्या तुम रियली में एक ट्री को मार सकते हो? Okay, it is not easy to kill the tree, because if you want to kill the tree, you have uprooted the tree from the down the earth. Okay, so man can't kill the tree in a blink. Okay, so he says that it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Okay, it can take much time to kill a tree. What poet says that here? That poet says that it is not easy to kill tree simply. That the killing a tree is not an easy task. It is very time consuming task. Okay, it's not the task of one jab of knife. Jab, that means के यहाँ पर जैब का मीनिंग क्या होता है? एक कट लगाना, सडन रफ ब्लो करना. ओके, सो इट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ द वन जैब. बराबर, एक कट लगाया और ट्री पूरा कट हो गया और वो मर गया, उसका एग्जिस्टेंस हमने मिटा दिया. इट्स नॉट लाइक दैट. विल डू इट, अगर इफ़ यू डू इट, अगर तुमने कर भी दिया, एक ट्री को कट कर भी दिया, through the axe, through the knife, it has grown, slowly consuming the earth. Again, it takes its place within a short time. It consumes the nutrition from the earth and again stand on the earth. Okay? क्या करेगा वो? अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगा, अर्थ में से कंज्यूम करेगा न्यूट्रिशन थ्रू द सॉइल, राइजिंग आउट ऑफ इट, और वो वहाँ से निकलेगा, अर्थ में से निकलेगा.
ज़मीन से निकलेगा, फ्रॉम द अर्थ, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water and out of its leprous hide sprouting leaves. वो फीड करेगा, जैसा बच्चे फीड करते तो बड़े होते हैं ना, इस तरीके से वो अर्थ की सॉइल में से न्यूट्रिशन फीड करेगा अपॉन इट्स क्रस्ट. क्रस्ट यानी कि व्हाट इज द क्रस्ट? uppermost layer of the earth. Okay, so it nourishing itself on the nutrients found in the earth. उसको जितने भी न्यूट्रिशन मिलेंगे वो न्यूट्रिशन को लेकर अर्थ क्या होगा, अरे सॉरी ट्री क्या होगा, फिर से सनलाइट, वाटर, एयर कंज्यूम करेगा और फिर से एज इट इज खड़ा होगा. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. स्प्राउटिंग का मीन्स होता है ग्रो करना, डेवलप करना. ओके, एंड देन अगेन वो क्या करेगा, उसके अंदर जो है छोटे छोटे लीव्स, बेबी लीव्स आना शुरू हो जाएंगे. सो इफ killing a tree is not a long term process like that, ट्री का ग्रो अप होना ये भी एक लंबे टाइम की बात है. सडनली विद इन 3 month या सडन कोई भी ट्री ग्रो अप नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है. So hack can chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. Okay, what poet says, so hack and chop. Okay, now what he said, that the even though the bark looks irregular, scaly leaves, branches sprouted. Okay, और यहाँ पर एक हमें ब्लीडिंग बार्क वाला कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. ओके, ब्लीडिंग बार्क किसको बोलेंगे भाई, पता है, एक वाइट काइंड ऑफ लिक्विड जो बार्क जो होती है उसमें से निकलता है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग बार्क. ओके, सो हैक एंड चॉप, कट और फेल डाउन. क्या उसको जो ट्री है उसको काट दो, उसको गिरा दो, बट ही दिस अलोन वॉन्ट डू इट. बट इतने से कुछ नहीं होगा. इन द हैबिट ऑफ वॉन्ट डू इट, इतने से कुछ नहीं होगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. उसे उतना ज़्यादा पेन भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी जो ब्लीडिंग बार्क है, जो वाइट फ्लूइड लिक्विड जो निकलता है उसकी बार्क में से, जो बरसों से उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस की तरह है, वो जो ब्लीडिंग बार्क है, ब्लीड करना दैट मीन्स के ब्लड निकलना. बट यहाँ पर ये ब्लीड कौन सा है, जो वाइट फ्लूइड निकलता है जब हम कट करते हैं, वो जूस होता है जो ट्री का, उसको बोलेंगे. तो वो जो ब्लीडिंग बार्क है यानी कि वो खुद हील कर लेगा अपने आप को. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स. कर्ल्ड यानी कि छोटी छोटी बिल्कुल टेंडर होती है ना जो ट्विंग्स, यानी कि शाख, बराबर, छोटी छोटी जो ट्विंग्स है वो कर्ल्ड होकर फिर से राइज होना, उठना शुरू हो जाएगी. मिनिएचर बोज, बोज दैट मीन्स के ब्रांच, छोटी छोटी, मिनिएचर नहीं, स्मॉल ट्री ब्रांच जो है वो. ओके, वो भी फिर से राइज होना यानी कि ग्रो होना शुरू हो जाएगी. विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू फॉर्मर साइज. और अगर उसको चेक नहीं किया गया तो वो विद इन अ शॉर्ट टाइम अपनी फॉर्मर साइज में, पहले की साइज में ग्रो होने लगेगी. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली गिव पटेल जो है वो हमें बता रहे हैं कि हमें नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर फिर से हील कर लेगा. बट अगर हमने नेचर को हार्म किया है तो दैट्स अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग. हमारे ऊपर बहुत लंबी वो इफेक्ट छोड़ कर जाएगा. दैट्स वाई ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम इसके बाद का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.